بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی صاحبزادہ فاروق سلطان زلفی اور تسی دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج تے وستے رہن گراں. اج جناب مئی دی 26 تاریخ ہے اور ٹیمپریچر ہے ساڑھا جناب 21 اور چکوال جنت نظیر وادی ہے جس طرح سے آدھے ہیں کہ بڑا پیارا موسم ہے. کوئی گرمی شرمی نہیں, دوسرا تیسرا دن ہے, بہت بارش شارش ہوئی ہے اور اس تو بعد موسم بہت اچھا. آج بھی جناب بدلن بڑے اور بڑا پیارا موسم ہے. میں اپنا آج بھی لاگ کرنا واسطے جا رہے ہیں جناب ایک چکوال دے مشہور معروف ایجوکیشنسٹ اور ایک بڑا چکوال دا مشہور تعلیمی ادارہ ونگس. باقی گلوں تو کیا کرنے ہیں اور سن پہ کہنے ہیں ونگس دا ادارہ. اور اس وقت صبح دے ہو گئے جناب 6 اور 6 بجے میں چلدا کیونکہ انہوں دی اسمبلی ہونی ہے 7 بجے, تو انشاءاللہ پھر ملاقات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابرار احمد, پرنسپل ونگس کمپیوٹر اینڈ کامرس کالج چکوال, عرصہ 30 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہوں اور اس علاقے کی ہی میں ایک گاؤں ڈنڈوت سے میرا تعلق ہے اور یہاں پہ میں اپنی خدمات بطور ایک اسٹوڈنٹ, ایک طالب علم, استاد کی حیثیت سے کر رہا ہوں, جو کہ زندگی بھر یہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. چکوال ایک غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے. بڑے بڑے نام جرنیلوں کے یہاں پہ گنے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں اور میدان جنگ سے زندہ صحیح سلامت واپس بھی آئے ہیں. شروع سے ہمارے یہاں رواج ہے جی کہ جو بچہ بھی تھوڑے سے پڑھ جاتا تھا وہ فوج کو, آرمی کو, نیوی کو اور ایئر فورس کو جوائن کر کے اپنی خدمات سر انجام دیتا تھا. اب بھی اس کا رجحان بہرحال بہت زیادہ ہے, لیکن زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ لوگوں نے تعلیم کا شعور بھی اس میں پیدا ہوا کہ صرف فوج میں جانا کافی نہیں ہے, ہم ہر شعبہ زندگی میں رہ کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کی بہتری کے لیے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور خاص طور پر اپنی قوم کا نام روشن کرنے کے لیے جو ہے نام آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو اس کے بعد پریکٹیکل فیلڈ میں آیا. میں نے چوز کیا کہ شاید میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں تعلیم کے شعبے میں اپنا جو ہے نا کچھ کردار ادا کروں. اس سے میں نے سب سے پہلے تو جو ایف ایس سی کر کے میں اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہوا, پھر بی اے بی ایڈ کیا, میں نے ایم اے ایم بی اے ایم ایڈ کیا, تو مجھے پتہ چلتا گیا کہ روز روشن کی طرح یہاں ہوتا چلا گیا کہ اس شعبے میں ابھی بہتری کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. تو سن 2000 میں ہم نے اپنے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جو آپ سمجھیں کہ بالکل سیلف میڈ سے لوگ نکلے ہیں اور علاقے کی بہتری کے لیے. بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں کہ تعلیم کے شعبے کا انتخاب ہی کیوں ہوا. ایف ایس سی کرنے کے بعد جب میں میرٹ کے لیے اپلائی کیا میڈیکل کالج میں اور صرف چند نمبروں کی وجہ سے میرا میرٹ رہا, تو اس کے بعد میرے پاس کوئی ایسا آپشن موجود نہیں تھا, میرے علم میں نہیں تھا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. پری میڈیکل کرنے کے بعد کون کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں آگے بڑھا جا سکتے ہیں. ساتھ میرے دوست تھے جو کہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر رہے تھے. ذرا جو بندے اپنے ہمت پہ پڑھ رہے ہوں, گائیڈ لائن دینے والا نہ ہو, خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو, ان کو آگے گائیڈ لائن بھی لینے میں مشکل آتی ہے. تو دونوں اکٹھے ہوئے ہم دوست اور ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو کمیاں ہمیں, یا ڈس انفارمیشن تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ان اویئرنیس ضرور کہیں گے, کہ جو ہمیں فیس کرنا پڑی ہم اپنے علاقے کے بچوں کو اس کا ان اویئرنیس کا سامنا نہ کرنا دیں. لہٰذا ہم نے سوچا کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جس پر ہم اپنے علاقے کے بچوں کو گائیڈ کر سکیں. سن 2000 میں ہم نے ایک کمپیوٹر لٹریسی پروگرام شروع کیا ایک چھوٹے سے ایک دکان سے, جہاں پہ ہم کمپیوٹر لٹریٹ کرتے تھے بچوں کو. پھر وہاں سے ہم نے اس کو ایک چھوٹے سے کالج, کمپیوٹر کالج میں کنورٹ کیا
उस वक्त 2000 में कंप्यूटर नया मोबाइल नया शुरू हुआ था, तो उसकी अवेयरनेस के बारे में हमने किया कि ताकि ये जो आईटी का फ़्लो आ रहा है तो उसमें हम बर वक्त अपना रोल अदा करके हम अपने बच्चों को, अपने इलाके के लोगों को लिटरेट कर सकें। फिर वहाँ से चलते हुए हमने एक बड़ी बिल्डिंग ले ली, इस इदारे को एक बाकायदा इदारे की शक्ल दी। 2002 में इसको एफिलिएट कराया रावलपिंडी बोर्ड से, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने इसकी मंजूरी ली। और हमने शुरू से एक टारगेट रखा हुआ था, स्कूल नहीं बनाया, हमने कॉलेज बनाया, ताकि हमारा शोबा जो हमें सामना करना पड़ता है जिन बच्चों को मुश्किलात का, आगे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से या तरक्की करने के कितने मौके या शोबे मौजूद हैं, उनके हवाले से हम अपना रोल प्ले करें। तो हमारा सिलसिला हुआ 2002 में रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन पिंडी बोर्ड से, और हमने एफएससी शुरू की, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ICS शुरू किया, ठीक है। और साथ साथ हमने देखा कि जहाँ पे इंजीनियरिंग, मेडिकल की और कंप्यूटर की ज़रूरत है, हालांकि उस वक्त के बिल्कुल इमर्जिंग ये फील्ड्स थे, उसके साथ हमने ICOM का भी हमने जो है ना आगाज़ किया। इसी वजह से हमारे कॉलेज का नाम है विंग्स कंप्यूटर एंड कॉमर्स कॉलेज, कि जिस शोबा है ज़िंदगी में बच्चे की दिलचस्पी है उसको हम नोट करें, फाइंड आउट करें, डिस्कवर करें, और उसके बाद उस शोबे में उसको मुतलका तालीम दी जाए ताकि वो उसकी सारी हिस्सियात जो है ना वो सेटिस्फाई हों और वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। 2008 में हमने अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साथ एफिलिएट करवाया, ताकि हम बच्चों को कॉमर्स सिर्फ इंटर के सतह पर नहीं बल्कि हम इसको BCom और MCom की सतह पर भी लेके जाएं। तो हमने बड़ी कामयाबी से इस सफ़र का जो है ना वो आगाज़ किया यूनिवर्सिटी के साथ। और इत्तफाक ऐसा देखिए कि शायद हमारा जज्बा और लगन ही थी, एक सच्ची धुन थी कि बच्चों को लिटरेट करें। 2008-10 के बैच में BCom में हमारी एक बच्ची कुरतुलैन ने यूनिवर्सिटी में अव्वल पोजीशन ली, गोल्ड मेडल लिया, और वो जो हमारा ख्वाब था वो हमें सच होता हुआ दिखाई दिया कि नहीं यार, जो सोचा है हमने उतनी लगन से पढ़ाया है, हमने गाइड किया है और हमने वो जो है वो अचीवमेंट कर ली है कि जिसका हमें इंतज़ार था। फिर हमने मज़ीद सफ़र को जारी रखा। 2014 में हमारे एक स्टूडेंट उमर जावेद ने रावलपिंडी बोर्ड में प्री इंजीनियरिंग के शोबे में 3rd पोजीशन ली, जिससे हमारा हौसला और बढ़ा। उसके बाद साथ ही 2015 में हमने कॉमर्स के शोबे में 3rd पोजीशन ली पिंडी बोर्ड के अंदर। तो इससे हमें पता चला कि हम लोग सिर्फ साइंसेस में नहीं बल्कि कॉमर्स में भी हम अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, और हमारा जो मकसद है कि हम दूसरों को गाइड करें तो वो वाकई हम जो हक़ बनता था हमने हक़ अदा किया। लेकिन ज़ाहिर है तालिब इल्म की हैसियत से, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि मैंने तालिब इल्म की हैसियत से काम शुरू किया और तालिब इल्म सीखता रहता है। तो अब आके हमने 2015 ही में BSCS लॉन्च किया कि प्री इंजीनियरिंग में भी हमने अपने झंडे गाड़ लिए हैं या अच्छा काम किया है, कॉमर्स में भी अच्छा काम किया है जहां हमने यूनिवर्सिटी लेवल को भी टॉप किया है। अब क्यों ना हम कंप्यूटर साइंसेज में भी अपना वही मकाम हासिल करें और अपना हक़ अदा करें, फ़र्ज़ अदा करें, इस धरती का कर्ज़ कि उन्होंने हमें, इस धरती ने हमें इस स्टेज तक पहुंचाया है और हम इस धरती का कर्ज़ अदा करने के लिए जो है ना अपना रोल प्ले करें। तो हमने तकरीबन उसमें अब तक 6 से 7 बैच हमारे 23 तक हो चुके हैं। आगे भी से सफ़र जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। हमारे इदारे की अहम ख़ासियत ये है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं इस अंदाज से कि उसके ज़हन में इरादा डाला जाए सबसे पहले, क्योंकि इरादे के बगैर आपकी जो धुन है, लगन है, वो पैदा नहीं हो सकती। कि किसी शोबे में अगर बच्चा बढ़ना चाहता है तो उसके वालिदैन के साथ हम मशवरा करते हैं। मशवरा करने के बाद हम बच्चे के ज़हन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम उसको उसी शोबे में कोशिश करते हैं कि ले जाया जाए। अपनी अचीवमेंट्स में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि शुरू से ही इस इदारे की ये कोशिश रही है, मेरे तवस्सुत से ही, कि बोर्ड्स के रूल रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ामिनेशन और इसके अलावा जितने मुतल्लिका शोबे बनते हैं कि जिसमें बच्चे को गाइडलाइन चाहिए, वो
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका इल्म रखूं, और न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने इलाके के तमाम प्राइवेट तलबा के लिए, या जो इम्प्रूवमेंट केसेस हैं उनके लिए, या किसी वजह से तालीम में पीछे रह गए, छोड़ चुके, जिनमें हुफाज की तादाद भी है जो अपने वक्त पे हिफ्ज़ करने के चक्कर में नहीं पढ़ सके, उनको भी गाइड कर सकूं। यही हाल है यूनिवर्सिटी रूल्स रेगुलेशंस का, और एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह वो आती है और अपने उस मुतलका जो क्यूरीज़ होती हैं, सवालात होते हैं, उनके जवाब सेटिस्फैक्ट्री जवाबात लेते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। कि एक बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छा आगाज़ है इस हवाले से कि मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के बारे में आवाम को मतला करना, आगाह करना बहुत ज़रूरी है। और फ़र्क सुल्तान जुल्फ़ी साहब जो कि अपने एक नाम है बहुत बड़ा ज़िला चकवाल का, और सिर्फ यही फ़र्क सुल्तान जुल्फ़ी नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि ये ख्याल नहीं है बल्कि मेरा यकीन और ईमान है कि इनके बुज़ुर्ग जो थे वो बड़ी हस्ती, बड़े बाप का बड़ा बेटा जो है ना, वो एक अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है कि जिस मिशन को लेके वालिद साहब चले उस मिशन को लेके फ़र्क सुल्तान जुल्फ़ी साहब भी चल रहे हैं। वो क्या है, इलाके की खिदमत। पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो क्या करता है, पढ़े लिखी लाइन इख्तियार करता है। इन्होंने जो शोबा अपनाया, जिस शोबे को प्रमोट करने का बेड़ा उठाया, वो एजुकेशन है, और उसमें भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, मैं इनको कहूँगा खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को, वो जो इग्नोर्ड शोबा है, वो जो मेरा ख्याल है कहना चाहिए कि शायद सौतेला बेटा है, उसको सगा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो छोटे छोटे इदारे मुख्तलिफ़ करिया बस्ती बस्ती में खुले हुए हैं और अपना बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, उनको ये प्रमोट कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो एक आप कह सकते हैं कि सही कर रहे हैं, ताकि लोगों तक पैगाम पहुँचे कि कहीं भी अगर कोई अपना किरदार तालीमी हवाले से अदा कर रहा है, चाहे वो इल्म हासिल करने के हवाले से है या इल्म को बांटने के हवाले से है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मुदस्सर अतारी एक बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त की दुनिया का। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मैं समझता हूँ वक्फ़ कर दी है इस शोबे के लिए, और इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ ये यहाँ आए और इन्होंने सारे प्रोग्राम को कंडक्ट किया। और सबसे बढ़कर बात मैं अब ये करना चाहूँगा कि जो लोग काम कर रहे हैं मेरे जैसे, उसकी सबसे पहले शनाख्त करनी ये बहुत ज़बरदस्त होती है। ये इन दोनों हज़रात का कोई ऐसी चीज़ देखी, शायद मेरा वो 30 साल का तजर्बा देखा, शायद वो मेरी अचीवमेंट्स देखी कि इस वक्त विंग्स कॉलेज के तलबा कहाँ कहाँ मौजूद हैं, विंग्स कॉलेज अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है। ठीक है, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, और वस्ते रैन गिराम है जो है ना, इनका तालीमी शोबे को भी इन्हेंस करना, उसको प्रमोट करना बहुत और आज मैं मौजूद हाँ विंग्स कॉलेज, और विंग्स कॉलेज जेलम रोड तक एक बहुत ज़बरदस्त इदारा जी इब्रार साहब को लाए हैं। और इब्रार साहब एक सेल्फ मेड इंसान और एक सक्सेसफुल स्टोरी है। मैं कोशिश करे ना कि मैरिट होता है लोगों को लैके आइए और ऐसे लोगों का इंट्रोडक्शन कराइए या ऐसे लोगों नाल असी मिलिए जिन्हें ज़िंदगी भर मेहनत करके ये मकाम हासिल किया। इन्हें 30 साल पहले एक काम शुरू किया टीचिंग के हवाले नाल, और एक ऐसा बंदा कि जिस अपनी सारी तालीम जिहड़ी है वो खुद हासिल की है, जिसनों कोई विरासत कोई चीज़ इस तरह से नहीं मिली, लेकिन यह है कि सेल्फ मेड है और ख़ुद अपनी ने जदोजहद की है। त्रै संगी है, नदीम साहब, गुलफाम साहब और इब्रार साहब, और इन्हें ज़िला कौंसल प्लाजे विच उस वक्त आगाज़ किया विंग्स कंप्यूटर कॉलेज का, और फिर उसनों अज एक ऐ शक्ल तुसी तक रहे हो कि कितना बड़ा इदारा माशाअल्लाह इस वक्त चकवाल का बहुत बड़ा कॉलेज जिहड़ा ये चला रहे हैं और कॉमर्स के हवाले नाल ने। मेरा जिहड़ा मकसद है वो ये है कि मैं वस्ते रैन ग्राम विच ऐसे लोगों अगे लैके आवां कि जिन्हें मेहनत की हुई है, और इस मेहनत दे बदले विच ही इंसान को कुछ मिलता। और अज मैं आया इत्थे बड़ी खुशी हुई, और मेरे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिता जी कि तुसी उर्दू गल कीता करो, एजुकेशन तो जिल्लै गल करनी है तो उर्दू बोलना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं समझना कि उर्दू तो एक साड़ी कौमी ज़बान है और हर वक्त असी बोलते भी हाँ, लेकिन
جیڑی میرا ایک خاصا اس پروگرام دا ایسا نا ہی اس طرح کہ وستے رہن گراں ایک پنجابی پروگرام ہے اور ماں بولی ہے، اور اس ماں بولی نو اگر لے کے چلیے تو زیادہ سواد ہے اور ایک چاشنی ہے زبان وچ اور ایک اٹریکشن ہے جیڑی وہ اپنی جگہ تے ہے. لیکن میں تو پنجابی چ گل کرنی ہے، ظاہر ہے جس بندے کو اسی آئے ہیں اس اپنے مطابق گل کرنی ہے کہ وہ پنجابی چ گل کرے یا اردو چ گل کرے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں خصوصی طور تے ممنون ہاں جناب ابرار صاحب دا، گلفام صاحب دا کہ انہوں نے ساری عزت افزائی کی ہے اور سن ٹائم دیتا اور اسی اتھے آئے ہیں اور انہوں نال گپ شپ لائی ہے اور انہوں دا ادارہ تکیا اور انہوں نے بچوں نال ٹیچرز نال وقت گزاریا اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایک کامیاب ادارہ جڑا وہ چل رہا. تو اس کے نال ہی مینوں اجازت دیو، میں ہاں صاحبزادہ فرق سلطان زلفی اور تسی ویکھ رہے ہو میرا پروگرام وستے رہن گراں. فی امان اللہ.